Hello and welcome you all again in this another biology video. We are studying respiration and yes, in the respiration we are studying the internal respiration. So let's start. Yes, respiration in animal takes place through four important steps that already you know now: breathing, then external respiration, internal respiration, and the cellular respiration. So, breathing and internal respiration already we have studied in the previous video. We have also studied the transport of O2 and oxygen dissociation curve in the previous video, so you can go for that. Then today we are going to study the transport of a CO2. So let's start. Yes, so as we know, internal respiration involves the transport of oxygen and transport of carbon dioxide. Now transport of oxygen takes place from lungs to the body tissue, whereas transport of carbon dioxide it takes place from body tissue to the lungs. Okay, and both these transports are carried out with the help of this RBC and plasma of the blood. They play very important role in this transportation. Now this the CO2 transportation, as we said, it takes place from body tissue to the lungs, because CO2 is formed in the body tissue, or cells carry out different metabolic activities, and during that metabolic activities the CO2 is synthesized as a byproduct or waste product, and the accumulation of this CO2 in the body tissue is harmful, or accumulation of this CO2 is harmful for the body tissue. Okay, and its a removal or elimination of this carbon dioxide is very important, right? And this elimination is carried out with the help of this RBC and plasma of the blood. And yes, दिस कार्बन डाइऑक्साइड जो भी ये सेल्स में अभी फॉर्म हुआ है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड एज इट इज CO2 के फॉर्म में उसका ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है. ओके, CO2 has to convert into three different forms, यानी CO2 को अपना रूप बदलना पड़ता है, एंड उसको थ्री डिफरेंट रूप लेने पड़ते हैं, एंड दीज और उसको हम कहेंगे CO2 के डिफरेंट फॉर्म्स. तो ये फॉर्म्स कौन कौन से हैं? वन इज कार्बोनिक एसिड, second is the bicarbonates of sodium and potassium, and third is the carbamino hemoglobin. Okay, HbCO2. So let us see one by one. So carbonic acid, first of all, this is the first form of a carbon dioxide. Only 7% of carbon dioxide converts into carbonic acid. Okay, total total amount of carbon dioxide, whatever total amount of carbon dioxide, out of which 7% of carbon dioxide converts into carbonic acid. Then this carbonic acid conversion takes place in plasma. Okay, जैसे ही बॉडी के सेल्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, वो कहाँ पे रिलीज करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल जो सेल्स के बाजू में जो भी इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है उसमें पहले ये कार्बन CO2 जो है वो एंटर होता है, वहां से CO2 ब्लड के प्लाज्मा में एंटर हो जाता है. नाउ इनसाइड द ब्लड जो प्लाज्मा में वाटर है, तो वाटर के साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाता है? कंबाइन हो जाता है. सो CO2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड दे फॉर्म्स द H2CO3, दैट इज द कार्बोनिक एसिड. यहाँ पे कार्बोनिक एसिड क्या है? फॉर्म हो जाता है इन द प्लाज्मा. हाउ मच इट इज? 7%. सो ये डिजोल्व और सोल्यूशन के फॉर्म में ये कार्बोनिक एसिड जो है वो प्लाज्मा में रहता है. ओके, further this reaction is reversible. हमने यहाँ पे दिखाया है, this reaction is reversible. It means कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके H2CO3 बनाते हैं, यानी कार्बोनिक एसिड बनाते हैं एट टिश्यू लेवल पे. बट जब ये कार्बोनिक एसिड पहुंच जाता है, ट्रांसपोर्टेशन होने के बाद लंग्स तक पहुंच जाता है, तो वहां पे लंग्स तक पहुंचने के बाद वापस से ये कार्बोनिक एसिड से क्या बन जाता है? CO2 और वाटर बन जाता है. क्या बन जाता है? कार्बोनिक एसिड से वापस से CO2 और H2O बन जाता है, और ये CO2 जो है नाउ इट एंटर्स इनटू द लंग्स, and then
लंग से ये बाहर ट्रैकिया और फेरिंग्स और नॉस्ट्रिल से फिर इसको बाहर हम निकाल देते, दैट इज कॉल्ड एज एक्सहेलेशन। ओके, सो ये हो गया कार्बोनिक एसिड। सेकेंड जो फॉर्म है कार्बन डाइऑक्साइड का, दैट इज द बाइकार्बोनेट्स ऑफ सोडियम और पोटेशियम। okay, so this major जो carbon dioxide है that is transported in the form of these bicarbonates. 70% of, how much it is, 70% of bicarbonates are 70% of carbon dioxide is transported in the form of these bicarbonates। और ये अगर bicarbonates जो है कौन से bicarbonates फॉर्म होते हैं यहाँ पे, सोडियम बाइकार्बोनेट और या फिर पोटेशियम बाइकार्बोनेट। तो नॉर्मली ये जो प्रोसेस है इट टेक्स प्लेस इन आरबीसी। ये कहाँ पे होता है, आरबीसी में होता है, एट टिश्यू लेवल पे देख रहे हैं हम लोग ना। जैसे ही अभी बॉडी के टिश्यू ने वापस जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया है, दैट कार्बन डाइऑक्साइड फर्स्ट ऑफ ऑल एंटर्स इनटू द प्लाज्मा, प्लाज्मा में एंटर होता है और फिर प्लाज्मा से ये आरबीसी में एंटर हो जाता है। दिस कार्बन डाइऑक्साइड फर्स्ट प्लाज्मा में एंटर होता है, प्लाज्मा से आरबीसी में एंटर हो जाता है। इनसाइड द आरबीसी यहाँ पे वो वाटर के साथ कंबाइन हो जाता है, सो CO2 एंड वाटर एंड दे विल गिव राइज टू H2CO3, दैट इज द कार्बोनिक एसिड। H2CO3 क्या है, कार्बोनिक एसिड है। सो यहाँ पे भी वही तैयार होता है, कार्बोनिक एसिड ही फॉर्म होता है और प्लाज्मा में भी कार्बोनिक एसिड फॉर्म होता है। बट इन आरबीसी द स्पीड ऑफ दिस फॉर्मेशन ऑफ carbonic acid is very fast because there is one enzyme called as a carbonic anhydrase. A zinc contained enzyme called as a carbonic anhydrase is present in the RBC, and this carbonic anhydrase carry out this formation of H2CO3 very quick or very in the fast manner. Again, this H2CO3 is very unstable. ये H2CO3 जो है वो बहुत unstable है, and with the help of again this carbonic anhydrase, this H2CO3 converts into H plus ions and HCO3 minus ions. Okay, क्या फॉर्म होते हैं H plus और HCO3 minus ions in the RBC में ये फॉर्म हो जाते हैं। इसको और भी हम डिटेल में देखेंगे कि कैसे NHCO3 and KHCO3 जो है वो फॉर्म होते हैं। ओके, now, third form of this CO2 is the carbamino hemoglobin, that is the HbCO2. So 23% of carbon dioxide is transported in the form of this carbamino hemoglobin, और ये भी transportation is carried out with the help of this RBC। ये भी RBC के help से ही होता है, जहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो RBC के हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होके HbCO2 बनाता है। So 23% of such carbon dioxide is transported in the form of carbamino hemoglobin by the RBC. So let us see the formation of, first तो हमने देखा कि कार्बोनिक एसिड सिंपल है, वो प्लाज्मा में कार्बोनिक एसिड जो है वो फॉर्म हो जाता है, एंड दिस कार्बोनिक एसिड जो है वो converts into yes, this carbonic acid converts into bicarbonates again, और वो फॉर्म में वो क्या हो जाता है, प्लाज्मा लंग की तरफ उसको भेजा जाता है। ओके, नाउ let us see the transformation of these bicarbonates of sodium and the potassium. Okay, अभी ये प्रोसेस जो है वो हो रही है एट टिश्यू लेवल इन आरबीसी टिश्यू लेवल पे। अभी ये डायग्राम आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, यू कैन सी द टिश्यू, यहाँ पे टिश्यू सेल्स दिखाए 1 2 3 सेल्स यहाँ पे दिखाए हैं, एंड यस ये सर लाइट पिंक कलर में जो दिखाया है दैट इज द एरिया ऑफ वन ब्लड कैपिलरी। वो क्या है, वो ये टिश्यू को ब्लड सप्लाई करने वाली ये ब्लड कैपिलरी है, और ये ब्लड कैपिलरी में एक क्या दिखाया है, एक आरबीसी दिखाई है। रिमेनिंग लाइट कलर्ड इज द प्लाज्मा प्रेजेंट इन द ब्लड कैपिलरी, और उसमें एक जो आरबीसी है वो दिखाई है रेड ब्लड सेल, जो एक रेड ब्लड सेल में होगा वही सारे रेड ब्लड सेल्स में भी होगा इस तरह से। और अभी देखिए in these tissue cells during the metabolic activity they are releasing the carbon dioxide. Now initially it enters into this interstitial cells के side में जो भी tissue fluid है that is interstitial fluid उसमें वो enter हो जाएगा। वहां से this from interstitial tissue this carbon dioxide will enter into this blood capillary। अभी ये कहाँ पे आ जाएगा, blood capillary में आ जाएगा, जहाँ पे ये pink color में जो plasma है। So plasma में जब आएगा, so in the plasma this carbon dioxide combines with water
and it forms the H2CO3. H2 that is carbonic acid form हो गया यहाँ पे, but this process is very slow because there is no any enzyme, वहाँ पे कोई भी enzyme नहीं है इसलिए. Okay, now again यहाँ पर this H2CO3 is very unstable. It converts into HCO3 minus and H plus ions. Okay, HCO3 plus HCO3 minus and H plus ions जो है वो यहाँ पे form हो जाएंगे. Okay, फर्दर और जो भी 70% ऑफ जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है, दैट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स टू enters into plasma and then from plasma to RBC, वो RBC में CO2 enter हो जाता है. Now in the RBC what happens, this CO2 combines with water, वहां पर भी ये वाटर के साथ कंबाइन हो जाता है and it forms the H2CO3. क्या फॉर्म करता है H2CO3, but this H2CO3 formation is very quick or fast because one enzyme is there called carbonic anhydrase, zinc containing enzyme. Now यहाँ पर भी H2CO3 is very unstable. It converts into HCO3 minus and H plus ions में उसका conversion हो जाता है. Okay, now this in the RBC the H2CO3 formation is very fast. Okay, so इसकी वजह से क्या हो जाता है, there is accumulation of HCO3 minus ions. HCO3 minus ions भी ज्यादा ही तैयार होंगे and that they accumulate. Then after accumulation these HCO3 minus moves out फ्रॉम आरबीसी. वो आरबीसी से क्या हो जाते हैं, मूव आउट हो जाते हैं, आरबीसी से बाहर चले जाते हैं. अब ये बाहर जाने की वजह से क्या हो गया, यहाँ पे साइमल्टेनियसली H प्लस भी फॉर्म हो रहे. सो दिस आरबीसी का जो भी आयोनिक चार्ज है वो इम्बैलेंस हो जाता है. ओके, देयर इज अ डिस्टर्बेंसेस और इम्बैलेंस इन द चार्जेस. सो टू कंपेंसेट दैट चार्जेस क्या हो जाता है, ये चार्ज माइनस चार्जेस कंपेंसेट करने के लिए प्लाज्मा से जो क्लोराइड आयंस है वो दे एंटर इनसाइड द आरबीसी. क्या हो जाता है, प्लाज्मा से जो क्लोराइड आयंस है दे एंटर इनटू द आरबीसी एंड दिस इज कॉल्ड एज द क्लोराइड शिफ्ट. उसको क्या बोलते हैं, क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं. और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए हेम्बर्गर्स फेनोमेनन. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए हेम्बर्गर्स फेनोमेनन भी उसको बोलते हैं. ओके, नाउ this HCO3 जो भी अभी RBC से they came out or move out in the plasma, they join to the Na plus और K plus. वो क्या हो जाते हैं, सोडियम या फिर पोटेशियम को क्या हो जाते हैं, बाइंड हो जाते हैं and afterwards they will form NaHCO3 और KHCO3. अगर सोडियम से बाइंड हो गए ये HCO3 माइनस तो फॉर्म करेंगे NaHCO3 और अगर पोटेशियम से बाइंड हो गए तो दे विल फॉर्म KHCO3. इस तरह से ये बाइकार्बोनेट्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम क्या हो जाते हैं, फॉर्म हो जाते हैं and which in the next process they maintain the pH of blood. Okay, क्या मेंटेन करते हैं, वो pH of blood मेंटेन करते हैं क्योंकि इसी प्रोसेस में क्या होता है H प्लस भी फॉर्म होते हैं. तो H प्लस क्या कर सकते हैं, वो H प्लस जो है वो एसिडिटी बढ़ाते हैं, यानी pH को है जो डिक्रीज करते हैं, लो करते हैं. बट ड्यू टू दिस NaHCO3 एंड KHCO3 ब्लड का pH जो है वो मेंटेन हो जाता है. नाउ अभी ये जो ये हो गया HCO3 के बारे में कि वो प्लाज्मा में चले जाते हैं और ये दोनों के साथ कंबाइन हो जाते हैं. व्हाट हैपेंस अबाउट दिस H प्लस, these H plus ions from the RBC they combine with the hemoglobin. Okay, this H plus ions combines with the hemoglobin and they form the HHB. Okay, that is the reduced form of hemoglobin. वो this is the hemoglobin और वो हीमोग्लोबिन के साथ H प्लस आयंस कंबाइन हो जाते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं और क्या फॉर्म होता है, रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन फॉर्म होता है. अब यहाँ से Hb आया कहाँ से, इन आरबीसी. सो दिस आरबीसी इज क्रेम फ्रॉम लंग. ये आरबीसी कहाँ से आई है, लंग की तरफ से आई है ऑक्सी हीमोग्लोबिन लेके, दैट इज HbO2 को वो लेके आई है. नाउ दिस HbO2 जो है वो ऊपर वाली जो सारी कंडीशंस है, यानी कि यहाँ पे जो हाई CO2 है, यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है और तो और यहाँ पे अभी ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में हमने देखा था कि टिश्यू लेवल पे क्या होता है, CO2 हाई है यहाँ पे, उसके बाद ऑक्सीजन का लेवल कम है. ऑक्सीजन का लेवल यहाँ पे क्या है, बहुत ही कम है बिकॉज ऑलरेडी टिश्यू सेल्स consume or use this oxygen and that's why there is a low level of oxygen. So low oxygen, high CO2, उसके बाद यहाँ पे
टेम्परेचर राइज हो जाता है। उसके बाद सेल्स ने जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी की है, ड्यूरिंग दैट मेटाबॉलिक एक्टिविटी डीजीपी, क्या डीजीपी, दैट इज द डाइफॉस्फोग्लिसरेट, डीपीजी चाहिए एक्चुअली सर यहाँ पे, डीपीजी डाइफॉस्फोग्लिसरेट एंड इंक्रीज्ड pH. So due to these reasons, this hemoglobin, oxyhemoglobin dissociate from each other. ओके, सो ये ऑक्सीहीमोग्लोबिन क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है, उसमें से ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। ये ऊपर वाली सारी कंडीशंस जो यहाँ पर भी दी है, जैसे कि यस हीमो डिसोसिएट्स, तो ड्यू टू लो पीपीओ2 वहाँ पे ऑक्सीजन कम था, उसके बाद वहाँ पे हाई पीपीसीओ2 था, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा था, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, डीजीपी वहाँ पे ज्यादा हो गया। तो इन सब रीजंस की वजह से ये HbO2 डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर एंड इनटू Hb एंड O2। तो O2 तो चला जाता है सेल्स के अंदर, दिस O2 विल मूव टू इनसाइड द सेल्स, तो सेल्स को इस तरह से ऑक्सीजन का सप्लाई हो जाएगा। और जो भी वहाँ पे हीमोग्लोबिन फ्री हो गया था, दैट हीमोग्लोबिन कंबाइंस विद दिस हाइड्रोजन ions or it will form, then it will form the reduced hemoglobin, that is the HHB. Okay, so ये हो गया formation of bicarbonates of Na and the potassium, as well as ऑक्सीजन का पिकअप कैसे किया जाता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड का पिकअप, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड पिकअप टिश्यू लेवल पे कैसे होता है, ये यहाँ पे हमने देखा। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, यस, सो फर्दर यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन एंड दी बाइकार्बोनेट चेंजेस टू CO2 एट लंग लेवल। अभी लंग लेवल, टिश्यू लेवल पे क्या हो गया, यहाँ पे बाइकार्बोनेट्स तो फॉर्म हो गए। ओके, और ये बाइकार्बोनेट्स जो है अभी दे विल मूव टुवर्ड दी लंग्स, अभी लंग्स की तरफ ये सबको ले बाइकार्बोनेट्स को लेके जाना है। ओके, सो एट लंग लेवल पे अगर लेके जाते तो डायरेक्टली दिस बाइकार्बोनेट्स और द कार्बोनिक एसिड विल नॉट मूव टुवर्ड्स द लंग्स वाया हार्ट, दिस ऑल bicarbonates or the form of the carbon dioxide will move towards the lung, but via heart, वो heart की तरफ से वो जाएगा, via heart जाएगा, पहले तो heart की तरफ जाएगा। अभी यहाँ पे ये जो blood है वो blood क्या हो गया, deoxygenated हो गया। यहाँ पे टिश्यू लेवल पे क्या हो गया, ये ब्लड अभी क्या हो गया, डीऑक्सीजनेटेड कहेंगे, क्योंकि उसमें अभी कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हो गया, बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म में है बट कार्बन डाइऑक्साइड उसमें एंटर हो गया, तो ये ब्लड अभी क्या हो गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। सारी बॉडी जो टिश्यू है वहां पे ये यही प्रोसेस होगी एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। ओके, अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल किधर, कहाँ पे आएगा, हार्ट की तरफ जाएगा, particularly to the सारी बॉडी का जो deoxygenated blood है that will move towards the heart and सारी टिश्यू से कलेक्ट होके वो जाएगा हार्ट की राइट साइड में। ओके, एंड राइट एट्रिया में ओपन होगा, superior vena cava, inferior vena cava, coronary sinuses, they will bring this deoxygenated blood to the हार्ट, और फिर हार्ट से ये ब्लड कहाँ पे जाएगा, फिर लंग्स की तरफ जाएगा, हार्ट से कहाँ की तरफ जाएगा, लंग्स की तरफ जाएगा फॉर द ऑक्सीजनेशन प्रोसेस। ओके, तो अब ये सपोज लंग की तरफ आ गया। ओके, क्या आ गया, ये डिऑक्सीनेटेड ब्लड की जिसमें अभी बाइकार्बोनेट्स है वो लंग की तरफ आ गया। तो वहां पे जो बाइकार्बोनेट्स है, दैट बाइकार्बोनेट्स को कन्वर्ट होना पड़ेगा वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में, यानी CO2 के फॉर्म में। ओके, तो CO2 में उनको कन्वर्ट होना पड़ेगा। सो वहां पे जो भी टिश्यू लेवल पे जो भी प्रोसेसेस हुई थी उसके रिवर्स प्रोसेसेस यहाँ पे होंगे, कहाँ पे, लंग्स पे। ओके, तो देखिए ये डायग्राम में यहाँ पे ये alveolus, this is the alveolus, and in this alveolus yeah, this is the alveolus, और यहाँ पे alveoli को सराउंड करती हुई ये ब्लड कैपिलरी। ओके, उसका ये प्लाज्मा, और उसमें एक दिखाई है हमने एक रेड ब्लड सेल। अब यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी प्लाज्मा में जो भी
बाइकार्बोनेट्स थे, ओके, प्लाज्मा में जो भी बाइकार्बोनेट्स थे HCO3 माइनस और H प्लस, वो वापस से क्या हो जाएंगे, दे विल जॉइन टू ईच अदर, बाइंड विद ईच अदर एंड दे विल फॉर्म H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड फॉर्म करेंगे, ओके। ये प्रोसेस भी स्लो ही है बिकॉज देयर इज नो एनी एंजाइम। और H2CO3 is unstable, it further converts into CO2 and H2O, और ये CO2 जो है it will enter into the alveoli, ये क्या हो जाएगा, लंग के alveoli में एंटर हो जाएगा, ओके। फर्दर अब जो आरबीसी है, ओके, यहाँ पे जो आरबीसी है, आरबीसी में भी आरबीसी में जो भी बाइकार्बोनेट्स थे यहाँ पे, तो प्लाज्मा से सारे जो बाइकार्बोनेट्स है दैट विल अगेन एंटर इनटू द आरबीसी, वो क्या हो जाएंगे, प्लाज्मा से सारे बाइकार्बोनेट्स विल एंटर इनटू द आरबीसी, जो भी बाहर गए थे दैट विल अगेन एंटर इनटू द आरबीसी। वो कहाँ पे गए थे, टिश्यू लेवल पे जब थे तो HCO3 बाहर चले गए थे और Cl माइनस अंदर आ गया, तो अभी उसका रिवर्स होगा, HCO3 वापस से अंदर आ जाएंगे और Cl माइनस जो है वो क्या हो जाएंगे, बाहर चले जाएंगे, ओके। अब ये इनसाइड दिस आरबीसी ये HCO3 माइनस आ गए, ओके, और उसको कंबाइन होने के लिए H प्लस भी चाहिए, ओके। सो ये H प्लस अभी कहाँ से आएंगे, तो ये आरबीसी वो टिश्यू से क्या लेके आई थी, HHB भी लेके आई थी, दैट इज अ रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ अ हीमोग्लोबिन इज आल्सो कैरिड बाय दिस आरबीसी। तो यहाँ पे HHB जो है वो एल्वियोलाई में जो भी फ्रेश एयर हमने इनहेल की है, वो फ्रेश एयर में से ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन डिफ्यूज होता है एंड दैट ऑक्सीजन कंबाइंस विद दिस रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन एंड दिस रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन देन कन्वर्ट्स इनटू ऑक्सी हीमोग्लोबिन। रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन से क्या बन जाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है HbO2, और यहाँ पे हाइड्रोजन जो था रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन का वो फ्री हो जाता है, ओके, हाइड्रोजन आयंस फ्री हो जाते हैं। नाउ दिस हाइड्रोजन आयंस और ये बाहर से जो HCO3 अंदर आए थे, ये दोनों रिजॉइन हो जाते, कंबाइन हो जाते एंड दे फॉर्म्स द H2CO3, they forms the H2CO3, this and this H2CO3 is again very unstable, this H2CO3 converts into CO2 and H2O, but this process is very fast because there is one enzyme which is present only in RBC, that is a carbonic anhydrase, which is a zinc containing enzyme, so that it carry out the conversion of H2CO3 into CO2 and H2O, और इस तरह से वापस से H2O अपने ओरिजिनल फॉर्म में यहाँ पे आ जाता है and this H2O now diffuses into this alveoli, वो alveoli में क्या हो जाता है, एंटर हो जाता है। यहाँ से भी वो प्लाज्मा से भी CO2 आ गया और आरबी से भी CO2 आ गया लंग्स में, और अभी alveoli which is a part of lungs, और फिर एल्वियोलाई से ये ट्रैकिया, और फिर हमारे जो नॉस्ट्रिल से हम उसको क्या करेंगे, एक्सेल कर देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देंगे, बॉडी से बाहर निकाल देंगे, ओके। सो दैट इज द यस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दिस बाइकार्बोनेट्स एंड एक्सेल ऑफ दिस कार्बन डाइऑक्साइड। अभी यहाँ पे ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म हुआ है, दिस ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन के लिए कुछ कंडीशंस या कुछ रीजंस यहाँ पे बनते हैं ये कॉम्बिनेशन होने के लिए, वो क्या क्या है। सो ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज फॉर्म ड्यू टू हाई O2, यहाँ पे एल्वियोलाई में हाई O2 है, ये एक रीजन है। उसके बाद इसकी वजह से ये ऑक्सीजन कंबाइंस विद द हीमोग्लोबिन, और सेकंड क्या है वहाँ पे, इन द एल्वियोलाई, एल्वियोलाई में क्या हो जाता है, जब इनिशियल एयर हम इनहेल करते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है, तो ये भी एक रीजन है कि उसकी वजह से क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड लो होने की वजह से। उसके बाद फ्रेश एयर है तो टेम्परेचर भी उसका कूल है, एयर कूल है तो टेम्परेचर लो होता है, वहाँ पे पीएच भी जो है वो लो होता है, और कुछ ज्यादा एक्टिविटीज नहीं होती सेल की, इसलिए डीजीपी भी लो होता है, एंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस रीजंस देयर इज अ association of hemoglobin and the oxygen, and HbO2 is formed, okay. So this is about the transportation of a CO2, and one third form is also there called as a carbamino hemoglobin formation. So in this carbamino hemoglobin formation,
CO2 binds with the amino group of hemoglobin. In the structure of hemoglobin, there is a heme and the globin part. So globin is the protein. So amino group CO2 combines with the amino group of hemoglobin. Hemoglobin is present in RBC, and this binding is very loosely, okay, or loose binding, okay, and that's why the compound form is the कार्बामिनो हीमोग्लोबिन. ओके, सो ये फॉर्म होता है टिश्यू लेवल पे. यहाँ पे फॉर्म होता है टिश्यू लेवल पे. CO2 combines with Hb and HbCO2 is formed. Further, this carbamino hemoglobin molecule readily decomposes in the region where ppCO2, partial pressure of CO2 is low. तो ये लूजली बाउंड है, इसलिए जहां कहीं पर जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो कम है, वहां पे ये दोनों क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से वापस सेपरेट हो जाते हैं. अब कार्बन डाइऑक्साइड का लो लेवल कहाँ पर है, लंग्स लेवल पे होता है. ओके, जो फ्रेश एयर हम लेते हैं उसमें क्या हो जाता है, ऑक्सीजन ज्यादा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत लो होता है. तो ये वहां पे लो कार्बन डाइऑक्साइड होने की वजह से ये ब्लड में जो भी कार्बामिनो हीमोग्लोबिन है वो क्या हो जाता है, एक दूसरे से डिसोसिएट हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं. Hb and CO2 एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं. CO2 then enters into alveoli, और इस तरह से तीनों डिफरेंट फॉर्म में जो भी CO2 आया था वो वापस से क्या हो जाता है, अपने ओरिजिनल CO2 फॉर्म में आ जाता है एट लंग लेवल, और लंग्स में एंटर होने के बाद इस तरह से हम उसको क्या कर देते हैं, बॉडी से बाहर निकाल देते हैं. ओके, so these are the three different forms of the carbon dioxide through which this CO2 is transported. So this is all about the transportation of CO2. अगर आपको समझ में आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.